نیشنل کانفرنس لیڈر عمر عبداللہ نے آج ضلع ڈوڈا کا دورہ کیا۔ جناب ویلی کے زونل صدر سجاد احمد کچرو، سابق وزیر داخلہ خالد نجیب، جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر جیسے پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ عمر عبداللہ نے آج ڈوڈا بس اسٹینڈ پر عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کہتی تھی کہ کشمیر میں 370 کی وجہ سے ملیٹنسی اور بندوق ہے، اسے ہٹانے کے بعد یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن آج ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ سابق وزیر داخلہ خالد نجیب نے کہا کہ جو بھی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اسے یو اے پی اے کے تحت پھنسا دیا جا رہا ہے۔ ریسرچ اسکالر پروفیسر ولایت حسین رضوی ایک انوکھی کھوج میں لگے ہیں۔ انسانی قوت کو منتقل کرنے کے حوالے سے اس ریسرچ میں کامیابی ملنا کافی انقلابی ثابت ہو سکتا ہے۔ پیش ہے بیروا سما نمائندے منیر حسین کی خاص رپورٹ۔ الیکٹرانک ڈیوائس کا چارج دوسرے ڈیوائس میں منتقل کرنے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مگر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانی قوت کو دوسرے انسان میں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، مشہور ریسرچ اسکالر پروفیسر ولایت حسین رضوی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر رضوی کا کہنا ہے کہ وہ اس پر اس وقت سے غور کرنے لگے جب ایک بیٹری سے دوسری بیٹری میں چارج ٹرانسفر کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ایپ کے ذریعے کسی موبائل فون یا دوسرے کسی ڈیوائس کا چارج ختم ہونے پر چارج ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ ولایت رضوی کا کہنا ہے کہ اس ایجاد سے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا انسانی جسم سے اس کی طاقت کسی دوسرے انسان میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ریسرچ میں کچھ حد تک پیش رفت ہوئی ہے۔ 2.5 سال پہلے ایک انوینشن ہوئی کہ ہم چارج ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وائرلیس چارج ٹرانسفر۔ یہ دنیا کی مجھے لگ رہا ہے میرے دماغ کے حساب سے سب سے بڑی ایک سکسس ہے کہ جس میں ایک ٹرانسفر ہو سکتا ہے چارج ایک باڈی سے دوسری باڈی میں۔ مجھے یہاں یہ چارج ٹرانسفر جسم ٹو جسم، میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک کمزور آدمی کو ایک طاقتور آدمی بنایا جا سکے کہ اس کو دوسرے انسان کا چارج ٹرانسفر ہو سکے؟ اگر مشین سے مشین تک چارج ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کیا انسان سے انسان تک چارج ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا علم ہے، اس علم کی کھوج بہت ہی وسیع ہے، تھوڑا تھوڑا پیشرو ہوا ہے۔ پروفیسر ولایت حسین رضوی سری نگر کے ایس پی کالج میں شعبہ باٹنی کے صدر ہیں۔ پروفیسر رضوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیق کے سلسلے میں اپنی گاڑی میں بھی بغیر تار کے چارجر لگایا۔ اس کھوج میں بہت کام کر رہا ہوں، دن رات مجھے یہی فکر رہتی ہے کہ یہ چارج اگر ہوتا ہے ٹرانسفر تو کیسے ہوتا ہے۔ میں نے گاڑی بھی لائی ہے، گاڑی میں بھی مجھے وائرلیس ٹرانسفر چارج اسی لیے لایا ہے کہ میں اس پہ اسٹڈی کروں، ایک تار کو تار کے ساتھ کسی دوسرے ایک ڈیوائس کو دوسرے ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیے بنا چارج کیسے ٹرانسفر، یہ چارج ہم کیوں نہیں کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ایک دماغ سے دوسری دماغ تک چارج کیوں نہیں جا سکتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ سائنس کے طفیل میں اب انسان غیر معمولی اقدامات کر ہی رہا ہے۔ ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پروفیسر ولایت حسین رضوی انسانی قوت کو دوسرے انسان میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے بیروا سے منیر حسین حرہ کی رپورٹ۔ ذوالفقار نقوی کی غزلوں پر مشتمل کتاب دشت وحشت جموں میں جاری کر دی گئی۔ آج کے ایل سہگل ہال میں اس سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اردو ادب سے وابستہ کئی شخصیات اس محفل میں شریک تھے۔ قدوس جاوید، خالد حسین اور ایل جی کے مشیر فاروق خان نے کتاب کا اجرا کیا۔ نامور مصنف قدوس جاوید نے اس کتاب کا جائزہ پیش کیا۔ ایل جی کے ایڈوائزر فاروق خان نے میدان ادب میں ذوالفقار نقوی کے تعاون کی ستائش کی۔ تھا کہ غزلیں جو ہیں صرف عورتوں کے متعلق بات کی جاتی ہے، اب وہ بات نہیں رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب دنیا کے جتنے بھی انسانوں کے درد ہے، جو انسانی ویلیوز ہیں، قدریں ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ ساری اس میں جو ہے آ جاتی ہیں، اور اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، یکجہتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ آپ کو ہر ورگ پہ ملے گی۔
कलाम कारवां शहुरा की जानिब से आज पुलवामा में इकबाल डे के हवाले से एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के नामवर अदीबों और शुरा के अलावा नौजवान कलमकारों ने शिरकत की। तकरीब में नौजवान मुसन्निफ आकिब शाहीन के लिखे नावल वो जो ख्वाब ही रहा की रस्म रनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में अल्लामा इकबाल के अदबी सफ़र पर भी रोशनी डाली गई। तकरीब की सदारत अदीब डॉक्टर नज़ीर आज़ाद ने की। इन्होंने कहा कि नौजवानों का अदब की तरफ राग़िब होना एक अच्छी अलामत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम देखते हैं कि शेर व शायरी की तरफ हमारे अक्सर नौजवान राग़िब होते हैं, लेकिन नस्र की तरफ और वो भी फिक्शन की तरफ राग़िब होना और एक नावल लेकर सामने आना, ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं आकिब शाहीन को भी मुबारकबाद देता हूँ और इस सरज़मीन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ से ऐसे होनहार बच्चे पैदा हो रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर हमारे अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे कलमकार हैं और ऐसे बच्चों का अदब के मैदान में सामने आना ये फ़ख्र की बात है। जो भी डॉक्टर साहब ने भी खुद कहा था, डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब ने, कि ये नावल कश्मीरी हालात की भरपूर अक्कासी करती है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा हक अदा किया है, अलबत्ता जो दिल में एक तड़प थी कि कुछ काम कर सकूँ या अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले ले, तो इस एतबार से मुझे लगा कि ये किताब मेरे लिए सही है। ज़िला पुलवामा के मुरन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अवैस याकूब ने दिल्ली में कौमी सतह पर मुनक़िद हुए सुपर फाइटिंग लीग में गोल्ड मेडल हासिल कर खित्ते का नाम रोशन किया। लीग का इनेकाद ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स ने किया था, जिसमें मुल्क भर से मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने शिरकत की। अवैस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। अवैस एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, अब वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो पुलवामा में दूसरे नौजवानों को भी इस खेल की तरफ राग़िब कर रहे हैं। फाइट खेली दिल्ली में, वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 फाइटें खेली और वो जीती, गोल्ड निकाला वहाँ पे। अभी सिलेक्शन होगी हमारे बेंगलुरु ओपन, वहाँ पे चैंपियनशिप है, वहाँ पे 2-4 फाइटें और खेलनी है। जितना हमारा रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा उतने हमें जो सेलिब्रिटीज़ होंगे और जो जिनके हाई रैंकड उनके साथ लिंक्स वगैरह है, उनसे हमारा रब्ता होता जाएगा और इंशाल्लाह हम भी कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसने गोल्ड मेडल निकाला दिल्ली में, उससे हमें बहुत अप्रोच मिला वहाँ पे। रिसेंटली हमें जाना है बेंगलुरु खेलने, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हम फोकस कर रहे हैं और उसके लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ग्राउंडिंग पे, जो बाहर के लोगों में नहीं है, तो हम वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। ज़िला लेह में अंजुमन इमामिया यूथ विंग की तरफ से हर साल क़िरात का मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें लेह के तुलवा से तलबा और तालिबात हिस्सा लेते हैं। कोविड के चलते इस साल सिर्फ 25 लड़कियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। लेह में मुनक़िदा इस मुकाबले में बच्चों के अलावा सैकड़ों लोगों ने भी शिरकत की। बाद में कामयाब बच्चों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। शेख नज़ीर अहमद इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि जो कुछ खुशकोतर और दुनिया में हर लिहाज से तालीम, इखलाक, तरबियत और इंसानियत, हर लिहाज से इत्तिहाद और भाईचारगी, हर लिहाज से हम देखना चाहे तो इस कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल किया। बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने करगिल के दूर दराज इलाके में मल्टी डिस्पेंसरी डिसेबिलिटी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का आगाज़ पहाड़ी काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज़ अहमद खान ने किया। कैंप में हेपेटाइटिस बी के बढ़ते दायरे को रोकने के इक़दाम पर बात की गई। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने जनूबी करगिल में मर्ज पर कंट्रोल के लिए इंतज़ामिया से मदद की अपील की है। बी का जो ये आया है आपका, उसमें एक सिचुएशन है कि काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बकरिया से दोनों मिल के काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के हम एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह कि इसको कैसे कम किया जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि एक बेसलाइन सर्वे हमारे पास हो, एक रिपोर्ट हो कि ये किस एरियाज में किस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। और एक कदम ऑलरेडी बकरिया ने उठाया है फॉर वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें अभी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं पूरे पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए। तो उसमें हमारी कोशिश है इंशाल्लाह हम भरपूर मिल के बकरिया के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है और मैक्सिमम कवरेज जहाँ ज़रूरत है, तो उसमें हमारी तरफ से फुली हमारी सपोर्ट होगी।
सियासी लीडर मोहम्मद इमरान शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोग रिवायती सियासत से हट कर कुछ नया चाहते हैं, क्योंकि माजी की सियासत से लोगों का दिल भर गया। अनंतनाग के खनाबल में अपने सियासी कारकुनों के एक मीटिंग में इमरान शाह शरीक थे। इस मौके पर कई पंचों और दीगर सियासी कारकुनों ने इमरान शाह पर अपने एतमाद का इजहार किया। इमरान शाह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में माजी की गलतियां दोहराई जा रही हैं। हजरात और सरपंच और कुछ डीडीसी मेंबरों को यहाँ पे बुलाया था, उनके साथ हमने बात की और उन्होंने खुद चूज़ किया था कि खनाबल में हम मिलके आज बात करेंगे। और यहाँ पे आज कुछ मुबारक की बात है, डीडीसी मेंबर जो तेलवनी से कंटेस्ट किया था गजाला जी, उसने ज्वाइन भी किया हमारे साथ। और यहाँ पे टाउन में एक बिजनेसमैन गवर अहमद, उसने भी हमारे साथ आज यहाँ पे शमूलियत अख्तियार की। बार एसोसिएशन शोपिया के सदारती इंतखाबात का इनकाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपिया में किया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट शबीर कोले को सदर मुंतखब किया गया। सदारती इंतखाबात में 3 उम्मीदवार एडवोकेट मंसूर, एडवोकेट मुश्ताक और शबीर कोले ने हिस्सा लिया था। मीडिया से बात करते हुए कोले ने वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वकला के हुकूक और वक़ार के लिए वो अपने तमाम तर कोशिशें बरूएकार लाएंगे। बार इलेक्शन में जब दूसरी बार इलेक्ट होता है, रिपीटेड होता है, तो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है इंशाअल्लाह। और हमारे पास बहुत से मसाइल, हमारे पास सिर्फ बार के ही मसाइल नहीं है, हमारे पास शुपियान इलाके के मसाइल हैं। जो यहाँ जितने भी जो एम्बेजलमेंट हुए हैं, जितने भी वो इलीगल काम हुए हैं, जितने भी कोई इलीगल थिंग्स हुए हैं, यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है हर जगह। तो इसके लिए भी हमें बहुत काम करना है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों को पूरी हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो कोर्ट के हों या कोर्ट के बाहर होंगे, तो उसके लिए अब आवाज़ उठेगी और उसके जहाँ कहीं नाराजगी हो, जहाँ कोई गलत काम हुआ, उसकी निशानदेही हमारा काम। जिला पुंछ के मेडर कस्बे में पहाड़ी तबके के अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने की मांग की। इनका कहना है कि 70 सालों से इन्हें उनके हक से महरूम रखा गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिका हुकूमतों ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की। पहाड़ी लोग जितने भी हैं हमारे दबे हुए थे, आज ये थोड़ा सा सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वजह से, और हमें पहाड़ी मिलनी चाहिए और पहाड़ी बहुत ज़रूरी है। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते और वो हमारा हक जो है पहाड़ियों का है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, उड़ी, करना, जितने भी जम्मू के अंदर पहाड़ी इलाके हमारे पड़ते हैं, ये सब पहाड़ी हैं। और पहाड़ी इलाके के लोग बड़े पोशीदा के लोग हैं जो बिल्कुल इतने गरीब हैं, उनके लिए रास्ते भी नहीं है, उनके लिए तन के लिए कपड़ा भी नहीं है, उनके लिए ऐसा सिस्टम उनको गरोड़ किया जाता है। ये पीछे सरकारें आई और एमएलए आए, उन्होंने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे इस इलाके को। वादी में इन दिनों बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस ग्रिड स्टेशन पामपोर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद लोन ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि इस ग्रिड स्टेशन से बिजली में कोई कटौती नहीं की जा रही है और अब महकमे ने लासीपुरा, पुलवामा और चाडोरा, बडगाम में 2 नए ग्रिड स्टेशन कायम किए हैं, जिनकी बदौलत अब बिजली कटौती में कमी हो जाएगी। इन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से बिजली खर्च करने की लोगों से अपील की। याद रहे कि पामपोर का ये ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस ग्रिड स्टेशन जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के कई अजला के रिसीविंग स्टेशनों को बिजली फराहम कर रहा है। इस साल में हमारा जो है लासीपोरा में हमारा एक नया ग्रिड है 220/33। दूसरा ग्रिड जो यहाँ पे वैली में आया है चाडोरा साइड से आया है। चाडोरा साइड में करीबन 25 मेगावाट यहाँ से हम लास्ट टाइम दे रहे थे, जिसपे नागुमुर चार शरीफ रिसीविंग स्टेशन फीड हो रहा था। वो करंटली अब चाडोरा से वो लोड यहाँ से उड़ गया है पामपुर ग्रिड से, तो वो वहां से फीड हो रहा है अब चाडोरा ग्रिड से। तो उसकी सहूलियत यहाँ पे फिर जो 25 मेगावाट है वो कंज्यूमर्स को थ्रू डिफरेंट फीडर जा रही है।